ओम शांति। आज बाबार 18/7/2020 मुरली। आज बाबा मुरलीर विशेष पॉइंटे बोलेছেন যে তোমরা ডবল অহিংসক সেনাবাহিনী, যেমন বাহারের সেনায় সবথেকে সেরা পদ হয় কমান্ডার ইন চিফ, তো সেরকম এই রুহানি সেনাতেও সবথেকে উঁচু পদ হচ্ছে বাবার। উনি হচ্ছেন সুপ্রিম কমান্ডার। তারপরে বাবা বললেন যে যেমন একটা সেনা আরেকটা সেনাকে জয় করে তার দেশকে জয় করে নেয় বা তার রাজ্যকে জয় করে নেয়, ঠিক সেরকম এখন তোমরা জ্ঞান যোগ বল দ্বারা মায়াকে পরাস্ত করে এই পুরো বিশ্বকেই জয় করে নিচ্ছ। আর পুরো 2500 বছর তোমাদেরই এ বিশ্বে রাজত্ব চলবে। তো তোমাদের কত খুশি হওয়া দরকার যে এখন আমরা পুনরায় সারা বিশ্বে রাজ্য প্রাপ্ত করব। বাবা বলছেন যেমন জিসমানি সেনাবাহিনীতে ছোট ছোট কমান্ডারও থাকেন, জেনারেল থাকেন, লেফটেন্যান্ট থাকেন, তো সেরকম এখানে আমাদের রুহানি সেনাতে অনেক কমান্ডার আছেন, লেফটেন্যান্ট আছেন, জেনারেল আছেন। এবং বাবা খুব জোর গলায় বলছেন যে সেদিন দূর নেই যখন সারা পৃথিবীর উপরে তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করবে নিজের জ্ঞান যোগ বল দ্বারা এবং নিজের তন মন ধন দ্বারাই তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছ। তো একদিন সারা বিশ্বে তোমাদের জয় জয়কার আরম্ভ হয়ে যাবে। আর এটা ড্রামার অটল ভাবী, এই অটল ভাবীকে কেউ টলাতে পারবে না। কল্প কল্প তোমরাই মায়াকে জয় করেছ, এই পাঠ তোমরা বহুবার প্লে করেছ, আবার তোমরাই বিজয়ী হবে, এটা অটল ভাবী। তো তোমাদেরকে সব সময় এক খুশিতে থাকতে হবে। আজকে বাবা বিশেষ বলছেন যে শিব বাবার মহিমা সব থেকে উঁচু। বাবা যেমন এই রুহানি সেনাবাহিনীর বাবা কমান্ডার, ঠিক সেরকম বাবা রত্নাগর, বাবা জাদুঘর, বাবা সদাগর, বাবা জ্ঞানেরও সাগর। তো এত উঁচু বাবা যে সর্বশক্তিমান, আমরা তাকে যখন স্মরণ করতে যাই তখন মায়া আমাদেরকে বিঘ্ন দেয়। তো বাবা বলছেন যে তোমরা কখনো মায়া থেকে হেরে যাও না, আর মায়াকে পরাস্ত করে তোমরা যোগবল জমা করো, কেন তোমাদের এই যোগবল দ্বারাই একদিন মায়া তোমাদের কাছে হেরে যাবে আর তোমরা সারা বিশ্বের উপরে আবার পুনরায় রাজত্ব করবে। তো বাবা বলছে তোমাদের মনের মধ্যে সবসময় খুশি থাকা উচিত যে আমরা মহাবীর বাচ্চা, আমরা বহুবার মায়াকে জয় করেছি আর আমরাই করব। তো এই অটল নিশ্চয় দ্বারা তোমরা নিজের পথে নিজের পুরুষার্থে এগিয়ে যাও। বাবা আরও বলছেন যে তোমরা সবাইকে সাবধান করে দাও যে সামনে মহাভারত যুদ্ধ, তার আগেই তোমরা ভগবানকে চিনে নাও, না হলে মহামারী এই বিনাশের সময় অনেক যন্ত্রণা তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। তাই বাবা বলছেন যে সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে দাও এবং সবাইকে সাবধান করে দাও যে মহাবিনাশ সামনে। এবার আমরা আজকে বিস্তারিতভাবে বাবার মুরলি শুনব। তার আগে আমরা 2 মিনিট যোগ করব এবং বাবার কাছে আমরা দৃঢ় সংকল্প নেব যে বাবা যতই মায়া আমাদেরকে বাধা দিক, বিঘ্ন দিক, কিন্তু আমরা তোমাকে স্মরণ করে খুব পাওয়ারফুল যোগ করে আমরা তোমার থেকে শক্তি অর্জন করে মায়াকে পরাস্ত করবই। তো এখন আমরা 2 মিনিট যোগ করে তারপরে আজকের মুরলি শুরু করব। संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम
शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? बाबा जिज्ञेस করছেন যে তোমরা রুহানি সেবাধারী বাচ্চারা সবাইকে কি ব্যাপারে সাবধান করছো? उत्तरे बाबा बोलছেন, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। বলছেন তোমরা সবাইকে সাবধান করো, যেটা সেই মহাভারত যুদ্ধের সময় যখন পুরো দুনিয়া বিনাশ হবে আর নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে, আর এই বিনাশের পরে তোমাদের জয় জয়কার আরম্ভ হয়ে যাবে। তাই তোমরা নিজেরা মিলে বিচার বিমর্শ করো যে বিনাশের আগে সব আত্মাদেরকে বাবার পরিচয় কি করে দেওয়া যায়। আজকে বাবা গীত বলছেন, तूने रात गंवाई सो के दिवस गंवाया खाए। তো খুবই ভালো গান, ভক্তি মার্গে একটা আছে যে মানুষ রাত হারিয়ে দেয় শুয়ে, আর দিবস সারা মানে সারা দিন তারা খাওয়া দাওয়ার চিন্তাতেই হারিয়ে দেয়, নষ্ট করে। আর এই অমূল্য সময় এভাবেই চলে যায়। তো এখন এই অমূল্য সময়কে আমাদেরকে বাবার ইয়াদে সফল করতে হবে। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंच ते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है यह भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। বাবা পার্থক্য বলছেন যে সেটা জিসমানি সেনা আর তোমরা রুহানি সেনা, সেটা হদের আর এটা বেহদের। तुम्हारे में भी कमांडर्स हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। যেমন একটা সেনাবাহিনীতে চিফ কমান্ডার যা বলে তার ডাইরেকশনেই সেনা যুদ্ধ করে, সেরকম এখানে বাবার শ্রীমত অনুসার আমরা নিজের তন মন ধন দিয়ে বা জ্ঞান যোগ পবিত্রতা সেবার বলে আমরা মায়ার উপরে জয়প্রাপ্ত করছি। तो यहाँ लड़ाई की तो कोई बात नहीं, हिंस्र युद्धের কোনো ব্যাপারই নেই। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बजता है। यह सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं। ऊंच ते ऊंच बाप है, उनको जादूगर रत्नागर ज्ञान का सागर भी कहते। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। और बाबार महिमा अपरम अपार, माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना।
जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। বলছে মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ তোমার একদম বিনাশ পর্যন্ত চলবে। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा এত বড় দুনিয়া আর চারিদিকে সমস্ত সিস্টেমই তমপ্রধান হয়ে গেছে, তো আছে বিনাশ ছাড়া এর পরিবর্তন সম্ভবই নেই। আর সত্যযুগে তো সব কিছু সত্যপ্রধান হবে, तो विनाश तो होते ही हवे। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। लौकिक दुनियातेও দেখানো হয় কি একটা রাজা যখন আরেকটা রাজার উপরে জয় প্রাপ্ত করে তখন চারিদিকে তার জয়গান শুরু হয়। তো সেরকম যখন আমরা মায়াকে জয় করে নেব, পাঁচ বিকারকে জয় করে নেব, তখন চারিদিকে জয় জয়কার আরম্ভ হয়ে যাবে। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ना। बाबा खुशिर कथा बोलছেন যে লৌকিক পিতাও যখন বাচ্চাদের জন্য নতুন বাড়ি বানায় তখন বাচ্চারা কত খুশি হয়। তো সেরকম আমাদেরকেও খুশি হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের জন্য পুরো বিশ্বকেই নতুন বানাচ্ছেন। तो नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। এটা খুবই বড় একটা রহস্য যে দুনিয়া জানেই না যে ভগবান কখন এই ধরাধামে আসেন আর উনি কিভাবে বিশ্ব কল্যাণের প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন, কার শরীরে উনি আসেন, কিভাবে করেন, এটা दुनियाते क्यों जाने ना। बड़े ते बड़ा बाप है, बाकी फिर नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं ना। कमांडर कैप्टन यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। मुझे सारा विश्वेर आत्मा तुम्हार निजेरी भाई बोन तादेरके सावधान करो जे महाविनाश सामने दाड़िए आछे, तार आगे तोमरा निजेर आसल पिता के चिन्हे नाओ। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। আমাদের হাতে কোনো হিংস্র অস্ত্র শস্ত্র নেই বা আমরা কোনো হিংস্র যুদ্ধ করছি না। बाप समझाते बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। যেমন যেমন রাত যখন আছে তখন দিন নেই আর দিন যখন আছে তখন রাত নেই, ঠিক সেই রকম বাবা বলছেন যে এই পতিত দুনিয়াতে একটাও পবিত্র আত্মা নেই আর সত্যযুগে একটাও পতিত আত্মা থাকবে না। तो इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उसमें अल्पकाल के लिए काग विष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। বলছে ভক্তি মার্গে মানুষ যেটুকু জপ তপ ধ্যান দান পুণ্য করে
তো অল্প ক্ষণিক কাকবিষ্টার সমান সুখ প্রাপ্ত হয়। কাকবিষ্টা এখানে বাবা বলছেন যেমন কাকবিষ্টা দূর থেকে মনে হয় একটা রূপোর কয়েন পড়ে আছে, কাছে গিয়ে সেটা একটা খারাপ জিনিস। তো সেরকমই অল্প ক্ষণিকের জন্যই মানুষ সুখ পায়, সদাকালের সুখ পায় না। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें? बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है। और सारा दुनियार जन्ने आसल मैसेंजर, पैगंबर बा सतगुरु एक बाबाई आछेन, बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के। संगम योगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाई है। अभी बाप तुमको सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। सत्य नारायण होवार कथा बाबा एखुन आमादेर शोनाच्छेन। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें, जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। যেমন এখন কোনো মহান পুরুষ কিছু মহান কর্তব্য করে গেলে তার বড় বড় মহিমার গল্প শুরু হয়ে যায়। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছেন যে সত্যযুগ ত্রেতা যুগে যে দেবী দেবতারা রাজত্ব করে গেলেন তাদেরই আবার ভক্তি মার্গে মূর্তি বানিয়ে বানিয়ে পুজো করা হচ্ছে। तो जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। এখন শিব বাবা আমাদের জন্য এত পরিশ্রম করছেন, আমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন, ঈশ্বরীয় পড়াই পড়াচ্ছেন, আবার আমরাই ভক্তি মার্গে বাবার শিবলিঙ্গ বানিয়ে বা মন্দির বানিয়ে পুজো করব। तो सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है। सत्ययुगे शिव बाबार पुजो होबे ना बा लक्ष्मी नारायणेर पुजो होबे ना, तारा तो निजेराई राजत्व करछे। तो यह भी तुम जानते हो, इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। बाबार सब থেকে नंबर 1 डायरेक्शन होच्छे बच्चे पवित्र हो। पतित तो सभी हैं, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है। बोलछे गरीबदेरकेও बाबार परिचय दाओ। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वह नहीं समझेंगे। बाबा बोलছেন যারা তোমাদের দেবী দেবতা কুলের নেই তারা এই জ্ঞান শুনবেও না, বুঝবেও না। বিনাশ কালে ঈশ্বর সে বিপরীত বুদ্ধি, বিনাশকালে তাদের ভগবানের সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যাবে। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है न लड़ाई झगड़ा करना है। बाबा बोलছেন যে যেমন বাচ্চারা যখন গার্জিয়ান লেস হয়ে যায়, অনাথ হয়ে যায়, তখন তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে, অপকর্ম করে, কিন্তু তোমাদের সামনে তো সবথেকে বড় গার্জিয়ান ধনী শিব বাবা সামনে আছেন, তাই তোমরা কোনো অপকর্ম বিকর্মও করবে না আর নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়াও করবে না। তাই বাবা বলছেন
হিয়ার নো ইভিল, সি নো ইভিল, টক নো ইভিল, মানে কিছু না খারাপ শোনো, না খারাপ দেখো, না খারাপ বলো। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के हैं, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वह पैर हैं। चोटी के ऊपर है ऊंच तेऊंच भगवान निराकार। ब्राह्मणरा আমরা चुटीते आছি, तार उपरे शिव बाबा। इन आँखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं। विराट रूप একটা বিষ্ণুরই রূপ আছে, যেখানে দেখিয়েছে যে বিষ্ণুর মুখমণ্ডল থেকে দেবতা জন্ম নিয়েছে, হাত থেকে বাজু না বাজু থেকে ক্ষত্রিয়রা, আর পেট থেকে বৈশ্যরা, আর পা থেকে শূদ্র। কিন্তু ব্রাহ্মণ যে জুটিতে আছে সেটা দেখানো হয়নি, বা তাদের উপরে শিব বাবা আছে যে ডাইরেক্টর, যে মালিক, তাকে দেখানো হয়নি। তো বিরাট রূপে এই দুটো জিনিসকে মিস করে দিয়েছে। तो जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। বলছে যেমন বাবার মহিমা অপরম অপার, সেরকম ভারত বছরের মহিমা অপরম অপার। তো 7 দিন, যদি 7 দিনের কোর্সের মাধ্যমে যদি কেউ ভালো করে তোমাদের এই জ্ঞান শোনে, তবেই সে ঠিক মতন বুঝতে পারবে। কিন্তু মানুষ কি বলে যে আমাদের ওইটুকু সময় নেই। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में। বলছেন যাকে তুমি আধা কল্প, 2500 বছর, দাপর যুগ থেকে 63 জন্ম তুমি যাকে ডেকে এসেছো, সে ভগবান স্বয়ং এসেছে। আর এখন তোমরা বলছো যে আমার কাছে তার জ্ঞান শোনার, তাকে স্মরণ করা, তার শ্রীমতে চলার সময় নেই। তো বাবারও आश्चर्य होच्छे। तो बाप को आना ही अंत में है, तो यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। माशुक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, तो ज़रूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। যেমন নিজেদের বাড়ি না হলে কি করি আমরা, ভাড়ার বাড়ি নিই, তো সেরকম শিব বাবার তো নিজের শরীর নেই। তো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, আমাদের উদ্ধার করতে বাবাকেও একটা পরকায়াতেই আসতে হবে, পরের শরীরেই আসতে হবে। तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। बाबा আমাদেরকে রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান দিচ্ছেন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে প্রবেশ করে। यह और कोई नहीं जानते, यह पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। বলছেন এখন আমরা সবাইকে জ্ঞান দান করছি। বাবা এখন আমাদেরকে যে জ্ঞান রত্ন দিচ্ছেন সেটাই আমরা অন্যকে দিচ্ছি। ভারতকে আমরা এখন নিজের তন মন ধন দ্বারা স্বর্গ বানাচ্ছি। तो कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो ना, किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते मामेकम याद करो। कृष्ण तो कह न सके,
वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। বলছে কৃষ্ণ তো ছোট্ট রাজকুমার, তো একটা রাজকুমার সে ছোট্ট মুখে সারা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের এত বৃহৎ জ্ঞান কি করে দেবে। তো এই জ্ঞান दाता तो शिव बाबा। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। বলছেন সত্যযুগ ত্রেতা শুদ্ধ পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম থাকবে, মানে গৃহস্থ জীবন পবিত্র জীবন হবে, তারপরে দাপর থেকে गृहस्थ जीवन अपवित्र हो जावे। बाबा कहते यह वही महाभारत लड़ाई है, तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए, रूहानी म्यूजियम बनाओ। बोलছে रूहानी म्यूजियम खोले दाओ चारिदिके, खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माओं तो निकालते हैं ना। বলছে লৌকিক দুনিয়াতেও ভক্তি মার্গেও গরিব হোক বা ধনী ব্যক্তি হোক, সে ধর্মের নামে কিছু না কিছু টাকা পয়সা আলাদা রাখেই। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরাও বাবার সেবার জন্যে ধন বের করে রুহানি মিউজিয়াম বা সেন্টার বানাও। साहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। बाबार काछे क्यों 2 টাকাও पाठिए दे, कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना। बाबा के बोलें बाबा तुम्हार एत बड़ो सेंटर होच्छे तो 1 টাকার ईंट লাগিয়ে दाओ। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, यह है गुप्त। तो সেই বাচ্চার গরিব বাচ্চার 1 টাকা কত 21 জন্মের জন্য তার বাবার ব্যাংকে জমা হয়ে যাচ্ছে, বাবা তাকে 21 জন্ম রিটার্ন দেবে। तो यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। বলছে ধনী ব্যক্তির কাছে অনেক টাকা আছে, সেখান থেকে সে 1000 টাকা দিল, আর গরিবের কাছে 10 টাকাই আছে, তার মধ্যে সে 1 টাকা দিল। तो परसेंटेज हिसाबे दुजनारी एक बराबर हो जाच्छे। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है। निराकार बाप कहते हैं बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया। तो बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबाও হচ্ছেন শিব বাবার সন্তান। সঙ্গম যুগে ব্রহ্মা বাবাকে শিব বাবাই রচনা করেছেন। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तो संगम जुगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश करानोर जन्य ये 3টে सूक्ष्म देवता की रचना करছেন। तो बाप आकर सत्य बात समझाते हैं, ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है ना। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं, यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है, यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। ब्रह्मा बाबा বলছেন যার মধ্যে আমি প্রবেশ করেছি, তার 83 জন্ম শেষ করে তারপরে যখন 84 জন্মের কাছে যখন চলে এসেছে, তখন শিব বাবা ওনার 60 বছরের অবস্থায় ওনার দেহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।
তাই গীতাতে লেখা আছে, হে অর্জুন, তুমি আর আমি অনেকবার মিলেছি, কিন্তু তুমি ভুলে গেছো আমার স্মরণ আছে। तो इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार हैं, वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया। बाबा बोलছে কোনো আত্মাকেই শিব বাবা বা পরমাত্মা ক্রিয়েট করতে পারে না। আত্মা অনাদি অবিনাশী আর শিব বাবা अनादि अविनाशी। तो बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। बाबा उसे नतून करे ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा क्रिएट करेनনি, दादा लेखराजेर मध्य प्रवेश करेছিলেন আর তারপরে ওনার अलौकिक नाम দিয়েছিলেন प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा এই दुनियारी मानुष। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए, तुम हो राज ऋषि। शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। যখন বাবার যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিল তো অনেক ভাই বোন পরিবার সহিত সমর্পিত হয়েছিলেন বাবার যজ্ঞে, তখন বাবা তাদের নাম পরিবর্তন করেছিলেন। যেমন সন্ন্যাসীদের নাম পরিবর্তন হয় সেরকম বাবাও তাদের অলৌকিক নাম দিয়েছিলেন। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। যখন বাবা দেখছেন যে যাদেরকে আমি নতুন অলৌকিক জীবন দিয়েছি, নাম দিয়েছি, তাদেরকেও মায়া গ্রাস করে নিচ্ছে, তখন বাবা অলৌকিক নাম দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी। বাবা জানছেন যে মানুষ কত কারাপ্টেড হয়ে গেছে, সব কিছুতে মিশিয়ে দিচ্ছে। তো দুধেও আজকাল জল মিশিয়ে দিচ্ছে, খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। तो सच्ची चीज़ तो मिलती नहीं, तो बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। तो आजकल दुनियाते अनेक गुरु আছে যারা নিজেকেই ভগবানের অবতার সিদ্ধ করছেন। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन्स प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। এখন কলিযুগে আমাদের সম্পূর্ণ ভান্ডারা শেষ, আবার বাবা আমাদের পুরো ভান্ডারা ভরে দিচ্ছেন আর সমস্ত কাল কণ্টক দূর হয়ে যাচ্ছে। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना, अमरपुरी में काल आ न सके। সত্যযুগে কালও আমাদের কাছে আসবে না, আমাদের দুঃখের মৃত্যু নেই, ইচ্ছা মৃত্যু। तो बाप आता ही है भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने, वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी हैं, फालतू नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। तो आज আমরা অনেক কিছুই বাবার কাছে শুনলাম। এখন আবার ধারণার মুখ্য সার। 1 नंबर पॉइंट, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं।
বাবা 2500 বছর পরে আমাদের ডাকেই এসেছেন, তাই কখনো বলো না যে বাবার এই পড়ার জন্যে আমার কাছে সময় নেই। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। कारो संगे आमरा खराब कथा बोलबो ना, खराब किछु सुनबो ना। आजकेर वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। বলছে যাদের মধ্যে আলস্য তারা তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়, আর যাদের ভিতরে খুব খুশি, উমঙ্গ, উৎসাহ, উদ্দীপনা তারা অক্লান্ত থাকে। तो जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। যাদের পুরুষার্থ করতে ভালো লাগে না, যারা দিল শিকস্ত মানা নিরাশ, তাদেরই পুরুষার্थ করতে आलस्य लागे। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे। অনেকেরা বলে না, এর থেকে বেশি কিছু করতে পারছি না, পুরুষার্থ এইটুকুই হবে, আমার আর সাহস নেই, করছি তো, চলছি তো। তো বাবা বলছে এই সমস্ত সূক্ষ্ম আলস্যের নাম চিহ্নটাও শেষ করো, আর সবসময় सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर होते हबे। आज के स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। और एक एकटा सेकेंडर महत्व के सामने रेखे सकल प्राप्तिर खाता फुल जमा करते हबे। ओम शांति। রাত্রে ঘুম আসছে না, ভয়ে আক্রান্ত, মনে স্থিরতা নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা? আসুন এবং জানুন এই সমস্ত সমস্যার সমাধান আপনার নিজের মধ্যেই আছে। আসুন আমাদের সঙ্গে থাকুন ওয়েবিনার ইনার রি-ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আগামী 18 এবং 19 তারিখ বেলা 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত ব্রহ্মাকুমারীজ বহরমপুর আপনাকে জানায় হার্দিক অভিনন্দন।